So, hello students, good morning to everyone. This will be your Python programming language class, and in today's class, we are going to implement two programs in Python language. First one will be the Python program to check that entered number is even or odd number, and then after we will make a program to find out largest number among three numbers. Okay, so please be motivated because these programs are very easy to understand as well as very important to understand, because every programming fundamentals require such kind of programming practices, so you can just enhance yourself as a programming or as a coder. Okay, तो आज की जो हम क्लास है इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे अपने नई प्रोग्रामिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छे से कोडर बन सके, ताकि आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन सके। तो देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको डायरेक्टली जो है उसके कोड्स नहीं लिखवाऊंगा। डायरेक्टली कोड लिखवाने से पहले जैसे हम यूजुअली करते हैं उसी हिसाब से पहले हम इसका लॉजिक समझेंगे। ओके, तो देखिए कि इवन और ओड नंबर है, अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी इवन और ऑड नंबर के लिए अपने को क्या करना होता है। अगर कोई भी नंबर जो है वो डिविजिबल है, जैसे कि 5 अगर डिविजिबल है 2 से, यानी कि इसका कोई रिमाइंडर नहीं आता है, तो वो क्या हो जाएगा, इवन। ठीक है, और अगर इसका रिमाइंडर कुछ आता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑड। So as I'm telling you that if any kind of remainder will be left, then it will not considered as the even number. Supposingly, if I will divide the 5 from the 2, then it will have one remainder. Okay, so if there will be any kind of remainder, any number will be remainder, then it will not be an even number. Okay, it is very well clear. So it will not a even number, so it will be a odd number. Okay, as you can answer me that its answer will be the 2.5, but it is not the correct answer na. I am looking for only the integer answer, not only the decimal answer or the fractional answer. Okay, so this will not be correct, so it will be an odd. So 5 will be an odd number. Let's check for 12. 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 6 जा 12, यानी कि जो रिमाइंडर आया वो 0, और अगर कोई रिमाइंडर नहीं आएगा तो वो कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है एक बेसिक सा लॉजिक, बहुत ही बेसिक लॉजिक है जिसका यूज करते हुए अपने एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ये मैंने यहाँ पर कमेंट दे रखा है ताकि आप लोग इसको कमेंट को आसानी से पढ़ सके और समझ सके। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल take an variable, let's say x equals to int input, and then I will ask the number, enter number to check. Okay, so this will leads me to x, to a variable, to a value. Okay, then I will check if x modulus 2 equals to 0, then print। अब x में हमारी वैल्यू है तो x का यूज करते हुए मैं लिखूंगा x is a even number। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है तो else print x is a odd number। okay, you can use the n article। okay, I am saving it। first you need to understand the logic, but when I am saving it, it is asking me the file name and the location, so I will not interrupt the location, I am just giving the name। I am giving the name even and odd। okay, चलिए ये सेव हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि देखो x की जगह यहाँ पर मैंने जो है मॉड्यूलस इसलिए यूज किया है डिवाइड की जगह, क्योंकि अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर नहीं देगा। यहाँ पर अगर मैं मॉड्यूलस का साइन का यूज करता हूं तो इसका मतलब ये है कि मॉड्यूलस चेक कर रहा हूं, यानी कि रिमाइंडर चेक कर रहा हूं। क्या जो रिमाइंडर आता है वो केवल 0 है, जब तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इवन नंबर। और अगर रिमाइंडर मेरा 0 से ज्यादा आता है, कुछ और आता है, तो वो क्या ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। तो चलिए सेव कर लिया है मैंने, इसको F5 से रन करते हैं। ठीक है,
unexpected end of file while parsing. So here we have done a mistake, then we haven't closed the parenthesis. Now I will run it. Okay. So enter any number to check. Let's say I'm checking for 24. So 24 is an even number. Why? Because when we divide the 24 out of 2, then it will not lead any kind of remainder. That's why the answer is an even number. Okay. Let's check for another number also, because we as a programmer you have to check for the both conditions. Let's say I am giving the value 67. Okay, so yes, 67 is an odd number because whenever we will divide the 67 to 2, it will remain one remainder, I guess. So that's why it is an odd number. Okay, so I hope that you have understood the program of even and odd number, and if you have any kind of doubt. So yes, there is one more condition. If we want to check that if an user entered any kind of zero value, which means the null value, then what we will do? So we will do a condition in which we are writing that if x equals to zero, that means whatever the data which is entered by the user, if it will be zero, then it will return a message on the screen that you have entered zero. Yes, and after that we are checking the our main logic that if the x modulus 2 equals to 0, that means if there is no kind of remainder remains in our program, then it will remain as even number, and otherwise the last condition, then it will show the odd number. Okay, so once again I am showing these examples output by running all three conditions. So the very first condition is if anyone enters the zero. If anyone enters the zero, then it will return you have entered zero. That means it cannot predict that it is an even number or it is an odd number. Second, we will check for the even number once again after applying the new logic. Supposingly 244, then it will return as a even number because it will not have any kind of remainder in it by doing the division from 2. The next and the last condition for odd number, if I will enter the 331, then it will return that 331 is an odd number because it will contain any kind of any number as a remainder when it will be divided by 2. So this is how we have understood that how we can build a program that will check and reply us that the entered number is even or odd number. Okay. So yes, students, after discussing a program which tells us that entered number is even or odd, now it's time to make a program that will find out the largest number, or we can say the biggest number among three numbers. So what we are going to do is we will take the three numbers as a user input, then our Python program will return that which is the largest number among that entered three numbers. So इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा वो देखिए समझना कि अगर जैसे कि मान लीजिए अपने पास तीन नंबर है, ठीक है, ए में अपन ने पुट करवा रखा है 12, फिर ठीक है, चलिए मल्टीलाइन कमेंट का यूज करते हैं. ओके, मल्टीलाइन कमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं. तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर लिखा 23 और c इक्वल्स टू यहाँ पर 5 है. ठीक है, तो अब अपने को ये बताना है कि इन तीनों में नंबर में से बड़ा कौन है. तो आप तो एज अ ह्यूमन बीइंग बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर बी नंबर बड़ा है, यानी कि 23 नंबर बड़ा है. बट आपका जो कोड है, जो आपका पाइथन प्रोग्राम है, वो कैसे इसको इंटरप्रेट करेगा, कैसे इसमें लॉजिक लगाएगा, अब वो आप समझो. ठीक है, तो सबसे पहले ए के लिए कंडीशन चेक करते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर के लिए कंडीशन चेक करते हैं. तो फर्स्ट नंबर के लिए कंडीशन अगर अपने को चेक करना है तो अपना पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो ए हो वो बी से भी बड़ा हो, साथ के साथ जो ए हो वो सी से भी बड़ा हो. तो अब देखिए सपोजिंगली कि अगर ए बी से बड़ा होगा तो वो अल्टीमेटली बड़ा होगा, और अगर ए सी से भी बड़ा होगा तो अल्टीमेटली ए ही तो बड़ा हुआ ना. ठीक है, बात आ रही है समझ में. चलो इसको एक एग्जांपल की तरफ से करके देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू है 3. ठीक है, तो ए बी से भी बड़ा है, हाँ तो ए ही बड़ा रहेगा, और अगर ए सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो है वो बड़ा कौन रहेगा, ए. सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है. ठीक है, अब मान लो मेरे को सेकंड नंबर की कंडीशन चेक करनी है, यानी कि मेरे को बी के लिए कंडीशन चेक करना है. तब मैं क्या करूंगा, अगर बी जो है वो ए से बड़ा हो और बी जो है वो सी से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, बी बड़ा होगा. अदरवाइज कौन बड़ा होगा, सी. तो
तो यहाँ पर अपने को कंडीशन में ये रखना है कि हर एक नंबर को उसके अल्टरनेट नंबर से, यानी कि जो बाकी के जो 2 नंबर है उनमें से अगर अब वो ग्रेटर हो जाता है, ये कंडीशन अपन ने दे दी, तब वो क्या हो जाएगा, वो एक लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। चलिए इसका लॉजिक लगा के देखते हैं। सबसे पहले अपने को 3 नंबर चाहिए होंगे, तो वी विल राइट द यूजर इनपुट कमांड, ओके, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर बी माने कि सेकंड नंबर है ना, एंटर सेकंड नंबर। अब सी माने कि थर्ड नंबर। तो इन 3 लाइन से मेरे पास 3 यूजर के इनपुट आ जाएंगे, यानी कि 3 नंबर्स आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा कि इफ ए जो वो है अगर बड़ा होता है बी से, ए एंड डी एंड नाम का जो है यहाँ पर हम कीवर्ड यूज करते हैं जिससे कि वो 2 कंडीशंस को चेक करता है कि अगर ए बी से बड़ा हो एज वेल एज ए सी से भी बड़ा हो, तब हम कॉलन लगा के क्या प्रिंट करवाएंगे, हमारा नंबर किस में है, ए में, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए इज द लार्जेस्ट नंबर, ओके। यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। अब इफ स्टेटमेंट, यानी कि अब मुझे बी के लिए चेक कराना है, तो अगर बी जो है वो ए से बड़ा होगा एंड बी जो है वो सी से बड़ा होगा, तो मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, बी इज द लार्जेस्ट नंबर, ओके। अब लास्ट कंडीशन क्या बचती है, ऑब्वियसली कौन बड़ा हो जाएगा फिर इस कंडीशन में, सी, ठीक है। ओके, ये मैंने इसको क्या किया, सेव कर लिया है। और अब देखते हैं इसको रन करके। चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट वैल्यू को बड़ा दे रहा हूं वैल्यू, ताकि हम देख सके कि क्या जो फर्स्ट वैल्यू है वो रिटर्न आती है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 40, सेकंड नंबर पे मैंने लिख दिया 12 एंड थर्ड नंबर पे मैंने लिख दिया 23। तो अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 40। तो यस, 40 इज द लार्जेस्ट नंबर, ओके। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, क्योंकि हमें एज अ प्रोग्रामर सभी कंडीशंस को चेक करना होता है। नेक्स्ट कंडीशन हम देंगे सेकंड नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ 12, फिर मैं वही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ 40 एंड 23। यस, 40 इज द लार्जेस्ट नंबर एज अ सेकंड नंबर, ओके। Once again I will run the program for the third number question, okay. So 12, 23 and the 40, yes। so इसका मतलब है कि जो हमारी तीनों कंडीशंस हैं वो सही से वर्क कर रही है और वो हमें सही से आउटपुट दे रही है। So students, this is how we have understood how to make a Python program to find out largest number among 3 given numbers. So I hope that you have enjoyed this session today. So take care, okay.